So welcome you all to the training session on ISO 9001-2015 Quality Management System Internal Auditor. Today is the third session, and in today's session, after the clause of confidentiality, we will quickly go through what we have learned so far, and after that we will start with the clause number 4, that is context of the organization. In that we have four sub clauses, that is 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4. We will go through in detail through this each and every sub clause. Also, we will have some examples of quality policy also and the scope of the quality management system also. In the clause number 5, that is leadership, again there are three sub clauses, 5.1, 5.2 and 5.3. In this 5.2 quality policy, we will see how the quality policy is made along with some example. Coming to the clause of confidentiality, the training material is of proprietary nature. Do not share the screenshots, the recordings on any of the public platform unless and until permitted by us. Share the knowledge, do not share the contents directly. So what we have learned so far, we have seen that how the standards are prepared, who prepares the standards, which committee prepares the standards, and then we have gone through the, excuse me, not IITF, no? Sorry. We have gone through the history of ISO 9001, how what are the brief content of this ISO 9001 2015. Then we have gone through the introduction of the standard, what is written there, what is the process approach, what is the risk based thinking, the PDCA cycle, we have gone through that. Then the various verbal forms used in the standard, जैसे कि shall, should, can, may and note. तो जब भी हम स्टैंडर्ड से जाएंगे, स्टैंडर्ड से जाते हैं, these words will be there. Now when we go through actual clauses, that is from clause number 4, you will see there will be a wording called shall. So ये shall का मतलब क्या होता है वो हमने देखा. And then we have gone through clause number 1, that is scope of the that particular standard. तो हमने कल देखा था कि ये regardless of the size or the type of industry, this ISO 9001 2015 standard is applicable. Almost all types of industries, whether it's a manufacturing industry or it is a service industry, उनके लिए भी ये applicable है. And then we have gone through the normative reference. Which standard is normatively referenced in ISO 9001 2015? Can anybody tell me? Which standard is normatively referenced? 9000 2015. Yeah, ISO 9000 2015. That is normatively referenced. Normatively referenced means it is indispensable, means necessary. Compulsorily you have to use it for the application of 9001. So आपको 9000 का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा for the application or implementation of 9001 2015. Then terms and definition हमने देखी. Again we have to refer ISO 9000 2015 for the terms and definition related with the ISO 9001 2015. So that standard 9000 2015 should be available with you, or I can say shall be available with you. It is compulsorily required. But बहुत सारी जो auditing agency है, they skip this point. They are not pursuing the organization to buy this standard or even refer this standard. But actually 9001 2015 का implementation will not be complete without the use of ISO 9000. And then we have seen how we can fit the various clauses of ISO 9001 2015 into the PDCA cycle, that is plan, do, check and act. So this is what we have learned till so far.
Now coming to the clause number 4, context of the organization. Very important clause because it falls under the planning phase of the PDCA cycle. You are now planning your quality management system. So जितना टाइम आप प्लानिंग पे या अच्छी तरह से आप प्लान करोगे उतना ही अच्छे से आपको आपकी जो बाकी की चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. Now it is 4.1 is understanding the organization and its context. 4.2 understanding the needs and expectation of interested parties. In both the days, the day 1 and the day 2, we have seen or we have gone through this word interested parties. हमने देखा था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और पीपल हु आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है या ऑर्गेनाइजेशन का उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, these are the interested parties. So you need to understand their needs and expectation also, क्योंकि अगर उनकी needs and expectation meet नहीं हुई, it is going to impact the organization adversely. तो जिसके कारण हमको रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है एंड देन उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई करके उनको कैसे मीट कर सकते हैं टू द एक्सटेंड पॉसिबल, वी हैव टू ट्राई दैट. Then 4.3 is determining the scope of the quality management system of the organization. In the clause number 1, that is scope of the ISO 9001. And now in the clause number 4.3, we have to determine the scope of the quality management system. ठीक है, तो जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका स्कोप हमको डिटरमाइन करना है. And then 4.4 because it's a boundary basically, and a scope is nothing but a boundary. And then coming to the 4.4, quality management system and its processes. हमने देखा था कि each and every activity to be considered as a process. मेंटेनेंस की प्रोसेस है, परचेसिंग की या प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है, क्वालिटी जो है मींस रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट क्वालिटी कंट्रोल वी कैन से, रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द प्रोसेस. Got it? Say inspection is one of the process, product release is one of the process, delivery is one of the process. तो आपको देखना है in your organization how these processes interact with each other. So let us go through each and every clause. Now, as we have seen in the definition, what is the context of an organization? Context of an organization is nothing but a combination of internal and external issues. The combination of internal and external issues that can have an effect on organization's approach to developing and achieving its objective. तो ऐसे जो भी फैक्टर्स होते हैं, it can be internal, it can be external, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो अप्रोच है टुवर्ड्स डेवलपिंग एंड अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि टू अचीव द प्रॉफिट, टू अचीव हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू सस्टेन और टू attain particular growth in terms of productivity, in terms of quality. All these are basically to grow is basically the objectives of the cost competitiveness, okay, cost reduction. All these are the objectives of the organization. So those parties, हमको ऐसी internal and external parties है, internal and external issues जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच को इम्पैक्ट करते हैं इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर is known as the context of the organization. Now what is the requirement? Mr. Prashant, can you please read the requirement? The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and its strategic direction and that affects its ability to achieve the intended results of its quality management system. Okay.
है ना. So what it is saying, shall, this is from, wording is from the standard. So it is saying the Yes. organization shall determine. It is not saying document. Okay, document तो हम हमारे बेनिफिट के लिए करते हैं. यू हैव टू डिटरमाइन. एज अ ऑडिटर मैं आपको पूछूंगा ना, जस्ट थिंक एज अ ऑडिटर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड? द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज. नाउ आप बताइए कि आप ऑडिट करने गए कहीं पे, तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? आप उस प्रोसेस का ऑडिट कर रहे हो आपकी कंपनी में, जो कि ये डॉक्यूमेंटेशन या फिर ये जो प्लानिंग फेज है किसका? ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि नॉर्मली इट लाइज विद द योर MR और डॉक्यूमेंट सेक्शन जो होता है उनके पास. तो आप सोचिए एज अ ऑडिटर, एज अ इंटरनल ऑडिटर आप गए वहां पर एंड नाउ यू आर ऑडिटिंग दैट सेक्शन. तो आप क्या करोगे? ऑडिटिंग मीन्स हमने क्या देखा था? व्हाट इज ऑडिटिंग? सबसे पहले दिन हमने देखा था व्हाट इज ऑडिटिंग? Uh, Identifying and checking the system or processes of this organization. Identifying and checking the system against what? Against the processes established by the organization. No, against the process established by the organization. But organization process किसके बेस पे establish करेगा? You cannot establish your own processes. आपको किसके विदिन करना है? With reference to what करना है आपको? Standards. Yes. है ना. तो ऑडिट में आप बेसिकली क्या करते हो कि यू आर चेकिंग कि जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही है. वेदर the particular process is complying with the requirement of a standard and any other requirement which organization has determined on their own. कभी कभी over and above भी आप कर सकते हो अगर ऑर्गेनाइजेशन सर इसमें या एक्सक्यूज मी सर, इसमें एक क्वेश्चन था सर, स्कोप और जो कॉन्टेक्स्ट डिसाइड होता है, हाँ. तो ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन हु शुड डिसाइड द स्कोप एंड स्कोप. कॉन्टेक्स्ट. या स्कोप और ये होता है ना, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन जॉब, है ना. Most of the Okay. documentation in an organization is a cross-functional or you can say multidisciplinary teams approach. It should not be lies with one of the person. It should not basically. अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो फेलियर है सब उसी के ऊपर चला जाता है फिर. It is सर a तो ड्यूरिंग ऑडिट, सर तो ड्यूरिंग ऑडिट हाउ वी कैन चेक दैट वेदर इट इज डिफाइंड बाय अ सिंगल पर्सन और अ टीम ऑफ मैनेजमेंट पर्सन और that is who not has driven this system. that is not a requirement. That is not a requirement कि ये किसने डिफाइन किया हुआ है. यहाँ पे ISO नहीं बोलता है कि आपको किसको करना चाहिए. आई एम टेलिंग यू द आइडियल सिचुएशन. जैसे जो ISO स्टैंडर्ड है, इट इज नॉट आस्किंग यू टू कीप द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ दिस, बट हम करते हैं क्योंकि एज अ ऑडिटर मैं जब आपके पास आऊंगा आई विल आस्क यू वेदर यू हैव डिटरमाइंड. नाउ इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्रिएट होगा? व्हाट क्वेश्चन यू विल क्रिएट फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट? डेवलप दिस ऑब्जेक्टिव और अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. नहीं, आप उसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा. रिक्वायरमेंट इज बेसिकली हमको क्वेश्चन किस तरह से आता है ऑडिट में? यू हैव टू जस्ट गो टू द अपोजिट. द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज. तो क्वेश्चन क्या आएगा? वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज डिटरमाइंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज. आप एक क्वेश्चन पूछोगे आपके ऑडिटी को, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका ऑडिट हूं, आप मुझे पूछोगे whether you have determined, so I will say yes sir, we have determined the internal and external issues. So यहां पे खत्म नहीं होगी. What will be the next question? आप क्या पूछोगे फिर मुझे? आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या मैंने डिटरमाइन किया है? आई एम सेइंग यस वी हैव डिटरमाइंड. तो क्या आप यहां पे सेटिस्फाई हो जाओगे? What will be the next thing? हाउ यू हैव डिसाइडेड. नॉट हाउ. यहाँ पे हाउ नहीं, आप बोलोगे, आप दिखाओगे तो आप पूछोगे पहले कि यस प्लीज शो मी. जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो यू विल आस्क मी शो मी. ये हम सब देखेंगे, है ना, जब हम ऑडिटिंग पे जाएंगे. सो यू विल कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी नीड टू आस्क, है ना. सो इट इज अ शो मी क्वेश्चन. तो आप मुझे बताओगे, देन आई विल शो यू द डॉक्यूमेंटेशन. क्योंकि अदरवाइज मैं बोलूं, ऐसे नहीं बोल सकता सर वर्बली कि यस दीज आर द वी हैव डिटरमाइंड. ISO नहीं बोल रहा है डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बट
फॉर अ कॉन्फिडेंस गिविंग टू द ऑडिटर एंड द कस्टमर मुझे कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है एक हद तक। तो आई विल शो यू। अब जब आप उसके ऊपर जाओगे तो आप मुझे नॉर्मली पूछ सकते हो कि हाउ यू डिटरमाइन, हु डिटरमाइंस, देन द पर्सन विल आंसर नॉर्मली, क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं रहती है ये, है ना। दे कैन से दैट ओके अलोंग विद द अपेक्स टीम विच इंक्लूड द पर्सन्स फ्रॉम वेरियस सेक्शंस, जो हमारे एचओडीज वगैरह है, इन सब ने मिलके, या नॉर्मली इसमें क्या होता है, इवन टॉप मैनेजमेंट और योर यूनिट हेड along with the documentation के जो लोग रहते हैं, they can determine on their own and then वो बोल सकते हैं कि हमने सभी लोगों को कम्युनिकेट कर दिया है करके। that will also work। ऑडिटर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है कि किसने डिटरमाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर Yes, sir. हाँ, आप Okay. जब इसके थ्रू जाओगे कि यार कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, हाँ आप ये पूछ सकते हो कि हाउ यू हैव डिटरमाइंड, तो वो बोल सकते कि यस सर हमने सॉट एनालिसिस हमने यूज किया हुआ है विच इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, या फिर हमने पेस्टल एनालिसिस यूज किया है जिसके अंदर हमने चेक किया कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसको हमने कंसिडर किया है while determining the internal and external issues जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। फिनिश। अगर आपने डिटरमाइन की है तो यू आर कंप्लाइंग विद दिस क्लॉज नंबर, विद दिस रिक्वायरमेंट, नॉट क्लॉज नंबर 4.1, विद दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो आपको सबसे पहले तो डिटरमाइन करना है, बट डिटरमाइन के ऊपर ये कहानी फिनिश नहीं होती है, वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, वहां पे आपको समझ। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अगर मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि सर दिस इज अवर डॉक्यूमेंट, दिस इज व्हाट वी हैव डिटरमाइंड, अब हो सकता है कि इसके अंदर कुछ छूट गया हो, दैट विल हैपन, नोबडी इज परफेक्ट, है ना, बट आपने डिटरमाइन तो किए हैं। हो सकता है एज अ ऑडिटर सबका अपना अपना एक व्यू होता है ना, इट इज, ऑडिटिंग इज नॉट लाइक 1+1=2, है ना। एवरी ऑडिटर विल हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर जगह पे जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल ऑडिट्स नाउ, या इवन इंटरनल ऑडिट भी जो कैरी आउट होते हैं, तो आपके इंडस्ट्री में हो सकता है कोई लोग बाहर से भी आए हो, है ना, सफल होके वगैरह, या फिर आपने भी बहुत सारे ऑडिट्स किए हो इधर उधर, या ऑडिट फेस किए हो, तो आपका एक लेवल बढ़ जाता है, तो यू मे नॉट बी सेटिस्फाइड विद दिस, तो आप अपने सजेशन दे सकते हो वहां पर, बिकॉज ऑडिटिंग का पर्पज ही है, यू नीड टू फाइंड द फैक्ट्स, कंप्लायंस चेक करना है, एज वेल एज यू नीड टू गिव सर्टन इनपुट्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑल्सो, ठीक। So this is basically, now you can see the internal and external issues by way of strength and weakness. So basically the हम strength and weakness जो रहती है वो हम internal issues में करते हैं, because it is a internal matter, है ना, organizational strength, organizational weaknesses, and the external will be what are the opportunities you find outside of your organization, and the threats will be from the outside, ठीक है। इनसाइड हम थ्रेट्स नहीं बोलते, इनसाइड की जो हमारी चीजें रहती है वी कॉल इट एज अ वीकनेस। हमारी वीकनेस क्या है, तो फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ हमारी है, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी हो, यू हैव अ, इन ईच एंड एवरी सेक्शन यू हैव अ एक्सपीरियंस पर्सन, सो एक्सपीरियंस वर्कफोर्स बिकम्स योर स्ट्रेंथ। बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट 4-5 साल पहले शुरू हुई है एंड यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस वर्कफोर्स, सो लैक ऑफ स्किल, है ना, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स बिकम्स योर वीकनेस, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इट विल चेंज। ISO 9001 में इसलिए उन्होंने बताया नहीं है कि यस दिस इज योर स्ट्रेंथ, दिस इज योर वीकनेस, ये तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती रहेगी, गॉट इट। सो योर स्ट्रेंथ कैन बी रिलेटेड टू मैन पावर, मैन मशीन मेथड मटेरियल, आप देखिए आपकी क्या क्या है ना। आपके पास अगर इन हाउस टेस्टिंग है प्रोडक्ट का, तो यस इट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। इफ योर लेबोरेटरी इज ISO IEC 17025 सर्टिफाइड, इट इज योर स्ट्रेंथ, कि आप आपके जो कस्टमर है, ठीक है ना, उनको आप कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि यस व्हाट वी आर टेस्टिंग, व्हाट रिजल्ट्स वी आर स्पेसिफाइंग आर
tested as per the international standard and our laboratory is certified. इसका मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, आपकी प्रोसीजर्स अच्छी है टेस्टिंग की, और जो लोग हैं वो भी उनका जो कॉम्पिटेंस है वो एज रिक्वायर्ड है. बट अगर आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, बार बार आपको बाहर से टेस्ट करना पड़ रहा है कोई पर्टिकुलर थिंग, इट कैन बी योर वीकनेस. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन? बिकॉज आफ्टर डिटर्मिनेशन, जब हम क्लॉज नंबर 6 में जाएंगे प्लानिंग में, द एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज है वहां पर. फिर आपको पता चले कि यस, नाउ वी हैव टू, जो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज रहती है, वी हैव टू टेक द एक्शंस ऑन दैट. So that's why first thing will be determination. वीकनेस है, फॉर एग्जाम्पल आपका इन हाउस रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, या फिर कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं है, तो इट बिकम्स अ वीकनेस. ठीक है. नाउ द एक्सटर्नल इश्यूज, अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिल सकती है? तो आपका अगर लोकेशन नियर टू द कस्टमर प्लांट है, इट इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपका फ्रेट कॉस्ट वगैरह कम पड़ेगा. आप कस्टमर को बोल सकते हो कि वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द इन्वेंट्री. ये सब चीजें आप उनको बोल सकते हो. अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि हम आज हमारा जो कस्टमर बेस है उसको आप इंप्रूव कर सकते हो, है ना. देन आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है उसको हम अगर नहीं क्या, अगर वो बढ़ जाते हैं बाहर, ठीक है, आपके जैसे प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट यू आर सप्लाइंग टू विच कंपनीज? if it is not confidential, can you people disclose that, okay, in which area your products are used, Mr. Prashant? It is supplied to the most of the pharma product and as well as export market. Okay, है ना. So now Few export products are for feed, few products are for animal feed and food. okay, okay, है ना. So now जैसे एनिमल फूड है ना, कैटल के लिए यूज होता होता, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल कि कैटल के लिए यूज होता होगा. नाउ अगर गवर्नमेंट ने कैटल जो है जो पशुपालन रहता है ना, उसके लिए जब गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो बहुत सारे लोग उस फील्ड में जाते हैं. अब जब वो बहुत सारे फील्ड में जाएंगे तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी. तो इट इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी. तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है ना, वो भी becomes a opportunity for you people. तो आपको देखना है कि it is basically internal and external issues. तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, here you see pestle analysis. This is called pestle analysis. Political, economic, है ना. तो आपका प्रोडक्ट के ऊपर अगर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो ये रहती है उसकी अगर इम्पैक्ट पड़ता है, तो यू नीड टू टेक दैट एज अ एक्सटर्नल इशू एंड फोकस ऑन दैट. गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडीज है, पॉलिसीज है, जिस या फिर इकोनॉमिकल पॉलिसीज है, उसका अगर आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, इट कैन बिकम योर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. अब थ्रेट्स में क्या आ जाएगा, फिर यू आर एक्सपोर्टिंग टू द मार्केट. अपॉर्चुनिटी भी है कि यस, यू कैन फाइंड आउट मोर कस्टमर्स, मोर टेरिटरीज. जो टेरिटरी में आपने अभी तक उसको टच नहीं किया है एक्सपोर्ट में, आप उसको ग्रो कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एक्सपोर्ट इज 20%, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, अगर आपका एक्सपोर्ट 20% है, देर इज अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द एक्सपोर्ट percentage, because in the export you are getting higher realization if that is the case. So you can say there is the opportunity to improve the export market share, है ना. या फिर आप एक्सपोर्ट को एक शेयर के साथ साथ में आप प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ा के एक्सपोर्ट को आप टैप कर सकते हो. बट थ्रेट में क्या आता है, कुछ कुछ चीजें जो बाहर की रहती है, विच इज नॉट इन योर कंट्रोल. तो आपका जो इनकमिंग रॉ मटेरियल है कहां से आता है, तो क्या उसका सप्लाई जो है इंटरमिटेंट हो सकता है या स्टॉप हो सकता है. जैसे बीच में हुआ था, व्हेन देयर वाज अ क्राइसिस, जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी उसके लिए जो एपीआई आता था, जो चाइना से ही आता था सिर्फ, देयर वाज अ ह्यूज क्राइसिस बिकॉज ऑफ द कोविड, है ना. तो इट इज बेसिकली अ थ्रेट कि अगर सप्लाई नहीं हुई वहां से बिकॉज ऑफ एनी इशू, इट बिकम्स अ थ्रेट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. आप आपका ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे क्या, प्रोडक्टिविटी का, कॉस्ट का, प्रॉफिट्स का? नहीं कर पाओगे अगर एक्सटर्नल फैक्टर ने कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, जो ये होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, इट कैन गेट अफेक्टेड, इट बिकम्स अ थ्रेट,
है ना। नया कोई कॉम्पिटिटर आपके मार्केट में आ गया तो इट बिकम्स अ थ्रेट फॉर यू, ठीक है ना। द प्राइसिंग वॉर अगर हो जाता है बिकॉज ऑफ द टू मच ऑफ पीपल, तो आपको क्या करना है फिर, थ्रेट को आपको एड्रेस तो करना पड़ेगा, है ना। यू कैनॉट प्रिवेंट इट बट यू कैन बी प्रिपेयर्ड, गेट प्रिपेयर्ड। अगर आपको पता है कॉम्पिटिटर आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, आप कॉम्पिटिटर को खत्म कर सकते हो क्या, कैन यू स्टॉप कॉम्पिटिटर फॉर कमिंग इनटू द मार्केट, क्या आप ऐसा कर सकते हो, जैसे हमने कल देखा, क्या आप रेनिंग होने से रोक सकते हो, कस्टमर कमिंग टू द मार्केट इज द सेम लाइक रेनिंग, आप हम उसको रोक सकते हैं। No, we cannot stop our हाँ competitor. हाँ, बट आप क्या कर सकते हो, आप जैसे रेन होने को रोक नहीं सकते हो बट यू कैन गेट प्रिपेयर्ड विद द अम्ब्रेला। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट को हाउ यू कैन मेक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, क्वालिटी वाइज आपको अच्छा बनाना है, प्रोडक्ट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाना है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है ताकि आप मार्केट में सर्वाइव करो, आपको मैक्सिमम उसका ये मिलता रहे। साथ ही साथ अगर लोकल कॉम्पिटिटर आता है तो यू कैन एक्सप्लोर अदर मार्केट्स, है ना। सो दैट इज हाउ यू गेट प्रिपेयर्ड। बट हम प्रिपेयर कब हो पाएंगे, जब हम उसको डिटरमाइन करेंगे। अगर आप डिटरमाइन ही नहीं करोगे कि रेनिंग होने वाली है, यू विल नॉट गेट प्रिपेयर्ड। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन एटलीस्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, क्योंकि जब तक हम उसको डिटरमाइन नहीं करेंगे, हाउ यू विल गेट प्रिपेयर्ड, ठीक है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको बताया था वन क्वेश्चन विल बी लाइक दिस वन, that whether now another requirement is there in the same clause. Yeah, Miss Sanmani, can you read this one? Understanding the organization and its context, the organization shall monitor and review information about these external and internal issues. Note 1. Issues can include positive and negative factors or conditions for consideration. Note 2. Understanding the external context can be facilitated by considering issues arising from legal, technological, competitive, market, cultural, social, and economic environments, whether international, national, regional, or local. Note 3. Understanding the internal context can be facilitated by considering issues related to values, culture, knowledge, and performance of the organization. Okay, thank you. So now we have to first determine, and number 2, only determination is not sufficient. जो 4.1 नेक्स्ट क्या बोलता है, द ऑर्गेनाइजेशन शाल मॉनिटर, अगेन द शाल हैज कम, शाल मीन्स इट इज अ कंपल्शन, है ना, आपको करना ही पड़ेगा। तो यू नीड टू मॉनिटर एंड रिव्यू इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज। तो आपको इसका पीरियडिक रिव्यू करना पड़ेगा, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। हम सिर्फ बोल नहीं सकते कि यस कॉम्पिटिटर आ रहा है ना, आपने थ्रेट तो लिख लिया कि यस a competitor coming into the market is a threat, है ना, it is one of the external issues which is impacting your organization. but क्या हम ये लिख के बैठ सकते हैं, आपको उसको पीरियडिक रिव्यू करना पड़ेगा बाय वे ऑफ एनीथिंग। ऐसा नहीं कि रोज करना है रिव्यू, है ना, यू कैन, योर ऑर्गेनाइजेशन कैन डिटरमाइन। हम बोल सकते हैं कि हम 6 महीने में करेंगे, 1 साल में करेंगे, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आपको पता है आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए कल अगर मैं सोचता हूँ प्लांट लगाना, तो आई कैनॉट बी इन अ मार्केट विद इन 1 डे और 1 मंथ और 3 मंथ्स। आपको पता है कि नहीं, एटलीस्ट आने के लिए उसको 6 महीने लग जाएंगे। तो आप वंस इन 6 मंथ्स रिव्यू कर सकते हो कि यस कुछ न्यूज है रिलेटेड टू दिस वन। ऑफिशियली आई एम सेइंग रिव्यूज। बाकी तो जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो टॉप हेड्स रहते हैं, दे हैव उनका पूरा ध्यान रहता है कि कौन कहाँ पे इमर्जिंग सिचुएशन आ रही है मार्केट में। बट systematically you can have a review about these external issues, internal issues, once in 6 months, once in a year, as your organization deems suitable. ISO 9001 ये नहीं बता रहा है कि आपको कब करना है,
9001 is asking you whether you are monitoring and reviewing this information or not. हो सकता है उसमें कुछ एडिशन हो जाए, कुछ डिलीशन हो जाए. दैट्स वाई अगर आप ये देखोगे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी, रिव्यू फ्रीक्वेंसी 1 ईयर, नेक्स्ट रिव्यू विल बी ऑन 1 अप्रैल 2022. नाउ एज अ ऑडिटर आप क्या देखोगे, क्या ये रिक्वायरमेंट कंप्लाई की जा रही है? तो उसके लिए आप पूछोगे कि आप कैसे मॉनिटर करते हो, आप कैसे रिव्यू करते हो. तो एटलीस्ट पहले पूछना पड़ेगा कि आप इसको रिव्यू करते हो. तो आई विल आंसर यस, वी आर रिव्यूइंग. I have also written the review frequency as 1 year, and now the next review will be on this date. फिर as a auditor you will ask me, जो पिछला आपने रिव्यू किया था, what are the points you are discuss? Then I have to show you something कि किन किन लोगों ने issues discuss किए थे, क्या डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए गए, है ना, that we need to discuss and that we need to basically show to the auditor. आपको दिखाना पड़ेगा ऑडिटर को कि यस हमने इस तरह से इन चीजों को रिव्यू किया था. नाउ व्हेन वी आर सेइंग इश्यूज, तो जैसे मैंने बताया ना, इश्यूज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना. स्ट्रेंथ भी पता होना चाहिए हमको और वीकनेसेस भी पता होना, थ्रेट भी पता होना और अपॉर्चुनिटी भी पता होना. नाउ जो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है, मींस द इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज बेसिकली कहां से, जैसे मैंने आपको बताया पेस्ट एनालिसिस, है ना, पेस्ट एनालिसिस करोगे सब आ जाएगा उसमें, है ना. लीगल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट रिलेटेड, कल्चरल रिलेटेड, सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स रिलेटेड, ठीक है. एंड इंटरनल के लिए आपको फिर देखना पड़ेगा, वैल्यूज है, कल्चर है, नॉलेज है, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है. कोई कल्चरल इश्यूज है क्या हमारे यहाँ पे, है ना, नॉलेज गैप्स है क्या, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसके रिलेटेड कोई इश्यू है क्या, तो इट बिकम्स योर इंटरनल कॉन्टेक्स्ट. जैसे ये एग्जांपल लिया है, बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव देयर ओन वे ऑफ हैविंग दीज थिंग्स, है ना. ये तो मैंने जस्ट लिखा हुआ है कि जो इशू है वो वहां से आ जाएगा हमारे, है ना, जो हम शॉर्ट एनालिसिस किए वहां से यहाँ पे आ जाएगा. इशू क्या है, नॉलेज गैप है. व्हाट इज द रिस्क, लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल सेट इन द एग्जिस्टिंग मैन पावर, है ना. नाउ यू डोंट डायरेक्टली रिलेट विद दिस वन, ओके. ये तो एक है एग्जांपल, इस तरह से आपको डिटरमाइन करना है. अब यहां से अगर आपको लगता है कि आपकी वीकनेस थी कि आपके पास नॉलेज गैप है, तो यू कैन से यस द नॉलेज गैप इज देयर. नाउ यू नीड टू हैव सर्टेन एक्शंस प्लान. फिर आप अपॉर्चुनिटी उसके साइड में लिख सकते हो, या फॉर अपॉर्चुनिटी यू कैन हैव अ डिफरेंट रो आल्सो, एनी हाउ. एंड सेम वे फॉर द एक्सटर्नल इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल इशू है, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो सकती है कभी भी, तो आप क्या करोगे फिर, जब भी कभी ऐसा ये आता है तो वी नीड टू चेंज. फॉर एग्जांपल इन द नोकिया ने जो है ना, वो थ्रेट को परसीव ही नहीं किया उन्होंने. दे नेवर थॉट कि ये टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी. एंड व्हाट हैपेंड, पहले सिर्फ नोकिया थी, उनको लगा ही नहीं कि एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग स्विच हो जाएंगे. इट वॉज अ रिस्क, इट वॉज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी. बट as an organization, Nokia failed to respond to this change in the technology. They never thought कि it is a big threat to their product line. और कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने उसको as a opportunity. So for certain organization it becomes a opportunity कि yes ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो we can say jump into that one. Got it? जैसे वीडियोकॉन के पहले जो टीवीज आते थे, सबको पता है कि यस वीडियोकॉन वाज देयर, ओनिडा वाज देयर. आज आपको दिखता है वीडियोकॉन और ओनिडा की टीवीज बहुत कम, है ना. वीडियोकॉन तो ऑलमोस्ट बंद हो गई है, बट उनके कुछ कुछ आ रहे हैं, एलसीडी एलईडी दिख रहे हैं कभी कभी, बट नॉट टू दैट ग्रेट एक्सटेंट. बट पहले अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 80-90% मार्केट ही उनका था. बट व्हाई दे आर नाउ आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज they never work on this risk, they never pursued this as a risk. Apart from that definitely कुछ managerial issue या management की issues होते हैं, that is different thing. But you can see as a very good example कि अगर हमने इस risk को, opportunities को properly tackle नहीं किया, तो how we are getting affected. Secondly मैंने जो पहले दिन बताया था आपको
जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, या जो क्वालिटी थिंकिंग या क्वालिटी रिलेटेड जो फंडामेंटल्स होते हैं, यू कैन यूटिलाइज दैट इन योर डे टू डे लाइफ फॉर योर पर्सनल थिंग्स ऑल्सो, है ना, इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। आपको पता है कि देयर आर सर्टन एक्सटर्नल थ्रेट्स आर देयर, एक्सटर्नल इश्यूज आर देयर, है ना। तो जैसे सडनली कोई डिसीज, कोई आपके यहाँ पे कोई इल हो गया फॉर एग्जांपल, है ना। नाउ इट इज बेसिकली अ एक्सटर्नल इशू एंड विच इज नॉट इन योर हैंड। आप ठीक है प्रिवेंट कर सकते हो जितना होना, बट हो सकता है कुछ हमको अफेक्ट हो जाए। नाउ फॉर दैट व्हाट वी हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस हम करके रखते हैं, है ना, ताकि अगर कोई सर्जरी करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो वी आर नॉट मॉनिटरली जो है हम इतना इंपैक्टेड ना हो उससे। तो सिमिलर वे ऑर्गेनाइजेशन को भी ये सब रिस्क जो है वो परस्यू करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सी रिस्क है और उसके लिए क्या क्या एक्शंस है वो डिटरमाइन करके एक्शन लेना चाहिए। नाउ लिमिटेड टू दिस 4.1 दैट कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस एग्जांपल इज सफिशिएंट। अगेन इन 6.1 क्लॉज नंबर 6.1 जो हम प्लानिंग में जाएंगे, क्लॉज नंबर 6 में प्लानिंग में जाएंगे। 6.1 is actions to address risk and opportunities. Again, these things are coming there also. So we will explain again in clause number 6.1 as well. So 4.1 में किसी को कोई इशू है जो हमने अभी तक देखा है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ इश्यूज होनी चाहिए, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज, और आपको उसको रिव्यू करना है, मॉनिटर एंड रिव्यू करना है उस पर्टिकुलर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज को। अब उसके ऊपर जो एक्शंस वगैरह लेनी है, इट विल कम इन द 6.1। तो इफ नो क्वेश्चंस ऑन 4.1, आई विल मूव टू 4.2। Yes, Mr. Sarvana, you want to say something? You are unmuted, but your voice was not clear. Means I was not able to hear you. Okay. Now, understanding the needs and expectation of interested parties. It is a clause number 4.2. ठीक है? So let us go through the clause number 4.2. Mr. Prashant, could you please read? Understanding the needs and expectation of interested parties. The organization shall determine A. Interested parties that are relevant to the quality management system. B. Requirements of these interested parties that are relevant to the quality management system. The organization shall monitor and review the information about these interested parties and their relevant requirements. Okay. Thank you. So again, the shall is there, है ना। तो आपको क्या करना है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन तो करना पड़ेगा। व्हाट दे हैव टू डिटरमाइन? द इंटरेस्टेड पार्टीज दैट आर रिलेवेंट टू द क्यूएमएस। आपकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके रिलेवेंट जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज है उसको आपको डिटरमाइन करना है। और सिर्फ डिटरमाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ इंटरेस्टेड पार्टी को डिटरमाइन नहीं करना है, आपको डिटरमाइन करना है उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज इंटरेस्टेड पार्टीज ऑल्सो। सो आपने अगर आपके एम्प्लॉय यू आर डिटरमाइंड एज अ इंटरेस्टेड पार्टी, सोसाइटी यू आर डिटरमाइंड एज अ इंटरेस्टेड पार्टी, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लेबर डिपार्टमेंट, यू आर कंसिडरिंग देम एज अ डिटरमाइनिंग देम एज अ इंटरेस्टेड पार्टी। तो अगर आपने उनको डिटरमाइन किया एज अ इंटरेस्टेड पार्टी, तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिटरमाइन करनी है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड जब आपने इस इंटरेस्टेड पार्टी को डिटरमाइन किया, आपने
उनकी रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन किया. अगेन द ISO 9001 is asking you to monitor and review this information. Okay, so again they are not saying कब करना है आपको. अब आपको डिसाइड करना है एज अ ऑर्गेनाइजेशन whether you want to do it every 6 months, whether you want to do it every 1 year. It's up to you. बट जो लिखोगे वो करना पड़ेगा. अगर मैंने वहां पे लिख दिया कि ईयरली फ्रीक्वेंसी इट्स वंस इन ईयर, तो आपको वंस इन ईयर करना पड़ेगा. ठीक है, प्लस माइनस 5 days 10 days हियर एंड देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, एवरीबडी अंडरस्टैंड. बट 3-3 4-4 महीने डिले नहीं होना चाहिए रिव्यू में. Got it? So 4.2 is asking you to determine the interested parties. और interested parties क्या होती है? जिनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है या फिर जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट पड़ता है. अब इंटरेस्टेड पार्टी को फोकस क्यों करना है? क्योंकि ड्यू टू देयर इफेक्ट और पोटेंशियल इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज that meet customer and applicable statutory and regulatory requirement. That is why we need to focus on these interested parties. But normally होता क्या है, whatever we are discussing the 4.1, 4.2 context of the organization, true sense में organizations जो है ना इन चीजों को अप्लाई नहीं करती है. They just do it for the purpose of documentation. कि हमको डॉक्यूमेंटेशन करना है, ऑडिटर को सेटिस्फाई करना है, एक्सटर्नल ऑडिटर को ISO सर्टिफिकेट लेना है, बस. बट अगर हमने इन चीजों को प्रॉपरली किया, यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग टुडे बिकॉज ऑफ नॉट एड्रेसिंग दिस इश्यूज. बहुत सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नया प्लांट लगाया आपने कहीं तो भी, सो आपको पता है कि इंटरेस्टेड पार्टी मीन्स आपकी जो सोसाइटी है, वहां की जो लोकल लोग पर्सन्स है, they are basically the interested parties. Now you have to have a proper action plan कि हम उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को किस तरह से मीट करें, है ना. उनकी रिक्वायरमेंट्स आपको पता होना. फिर उसके ऊपर अगर आप एक्शन लेते हो प्रॉपर तरीके से, आप उनकी नीड्स को मीट करते हो टू द एक्सटेंट पॉसिबल, है ना. आई एम नॉट सेइंग कि जस्टिफाइबल नीड्स है और उसको भी मीट करना है, नो वे. बट एटलीस्ट जो उनकी बेसिक नीड्स है, आपको उसको मीट करने के लिए व्हाट आर द एक्शंस एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन टेक, वो आपको लेनी है ना, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग चलते रहे, प्रॉपर रहे. नॉर्मली क्या होता है, लोगों का रहता है कि नहीं, हमारे जो लोग हैं वो वहां पर काम पे लगने चाहिए, आपके कारण पॉल्यूशन वहां पे नहीं होना चाहिए. उनको लगता है कि एज अ जो कम्युनिटी सोशल आपकी तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई ना कोई CSR एक्टिविटी हो जाना चाहिए, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप कुछ उनके स्कूल्स के लिए, कुछ उनके गांव के लिए, कुछ तो भी ऑर्गेनाइजेशन ने, एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू डू समथिंग. दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम एज अ लोकल पीपल. तो अगर वो आप करते हो तो आप उन लोकल लोगों के मन में आपकी कंपनी के प्रति एक गुडविल जागरूक करते हो, और फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से चलता है. यू विल नॉट फेस एनी इश्यूज. ठीक है. नाउ व्हाट आर ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, हमने जस्ट कुछ लिखी है मैंने, है ना. इसमें से कुछ हो सकता है आपके लिए एप्लीकेबल हो, कुछ ना हो, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. ISO 9001 ने नहीं बोला है कि ये इंटरेस्टेड पार्टी आपको लेनी ही है. इट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है. तो व्हाट आर ऑल दीज इंटरेस्टेड पार्टीज? कस्टमर, सप्लायर, दैट इज प्रोवाइडर्स यू कैन से, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, सोसाइटी कम्युनिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, political parties, government agencies, contractors, employee unions, competitors, all these are interested parties. अब उन्होंने बोला है कि आपको डिटरमाइन करना है. तो ठीक है, मैंने आपको लिस्ट दिखा दी कि यस, these are various internal parties we have determined.
सो एज अ ऑडिटर जब आप इंटरनल ऑडिट करने जाओगे आपको पूछना है कि have you determined internal and have you determined the interested parties? आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना कि have you, for example I am your management representative or document controller in your organization, ठीक है ना? तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि आप क्वेश्चन पूछोगे have you determined interested parties relevant to the quality management system, तो मैं बताऊंगा yes I have determined. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे आप? फिर आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला कि यस आई हैव डिटरमाइंड. नाउ व्हाट क्वेश्चन यू विल फ्रेम बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट? The parties. या Show us the हाँ, शो interested parties. हाँ, कैन यू शो मी द डॉक्यूमेंट, और इफ यू हैव प्रिपेयर्ड द डॉक्यूमेंट कैन यू प्लीज शो मी, यू कैन आस्क दैट वन. अब मैंने आपको दिखा दिया, उसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट है? मैंने लिस्ट ऑफ पार्टीज दिखाई आपको. व्हाट इज अनदर रिक्वायरमेंट of this particular thing? You need to determine the requirements also. तो आप मुझे पूछेंगे have you determined the requirements of these interested parties? तो मैं बताऊंगा कि yes I have determined the requirements of these interested parties and it is written here. These are all the needs and expectations of the parties. Then what will be the next question you can ask? क्या रिक्वायरमेंट है? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? इस पर्टिकुलर क्लॉज में क्या दिया है रिक्वायरमेंट? To monitor and review information. यस, तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? What is the review period for this monitoring? Yeah, you can ask what is the review period also. You can also ask how you are monitoring and reviewing the information related to this one. So then I can answer yes, we are monitoring it every year, and for that monitoring मैं बोल सकता हूँ कि yes, these are the people who are involved. We monitor, review it, and then we report it to the top management that okay, these are things needs to be addressed. Finish. Compliance is there. You can move to the next. Clear? So basically as an auditor there are two ways you can do the audit. Basically the ISO 9001 asks you to use the process approach. अब वो प्रोसेस अप्रोच कैसे ऑडिटिंग में यूज करना है अगेन टर्टल डायग्राम वगैरह मैं आपको बताऊंगा. बट इनिशियली जब तक हमको ऑडिटिंग में एक्सपर्टीज नहीं आती है तब आपकी जो चेकलिस्ट है उसके बेस पे भी हम ऑडिट कर सकते हैं. जैसे 4.1 की रिक्वायरमेंट्स है तो उसके अगेंस्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया हमने, है ना? जो रिक्वायरमेंट है उसके अपोजिट क्वेश्चन हो जाता है. द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन, हैज द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंड, क्वेश्चन यस और नो. ठीक है, देन उसको आप फिर ट्रेल करते जाओगे, शो मी, देन आप उसको रिव्यू करोगे, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चनिंग पूछोगे कि आपने इसको क्यों इंक्लूड किया, इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया. नाउ फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरेस्टेड पार्टीज है, एज अ ऑडिटी मैंने बताया आपको कि यस वी हैव डिटरमाइंड द इंटरेस्टेड पार्टीज. फिर मैंने बताया कि यस नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन भी है. एंड नाउ आपने डॉक्यूमेंट देख रहे हो मेरा, ठीक है? थोड़ा सा आपको फिर स्टैंडर्ड से हटके जाना पड़ेगा. नाउ यू आर गोइंग टू डू द ऑडिट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट व्हाट आई हैव शोन यू. ठीक है ना? नाउ here I say welfare committee and inputs from employee satisfaction survey. अब आप क्या करोगे फिर? ये अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, I am saying I will meet the requirement of the interested party, that is our employee union. They expect that we have welfare of the worker should be there. So I am saying we are carrying out certain welfare activity. जैसे कि हमारे यहाँ पे वेलफेयर कमेटी है और जो हमारे एम्प्लॉयज है उनसे हम इनपुट्स लेते हैं, साथ ही साथ हम एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे करते हैं. अब आप बताइए कि क्या आप चेक करोगे एज ऑडिटर? इसमें क्या मांगोगे मुझसे? कुछ मांगोगे? एज अ ऑडिटर, यू आर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एंड आई एम योर ऑडिटी. तो आप मुझसे क्या मांगोगे? Welfare committee activity list.
यस, तो आप मुझे एटलीस्ट पूछ सकते हो कि क्या आप क्या वेलफेयर कमिटी है, अगर है तो कैन यू शो मी द मेंबर्स लिस्ट वगैरह है आपके पास, है ना। फिर आप मुझे ये पूछ सकते हो कि आप इनपुट्स कैसे लेते हो आपके एम्प्लॉयज से, क्या जैसे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे लिख दिया तो आप पूछ सकते हो कि कब आप एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे कर रहे हो, मैं बोलूंगा कि यस वंस इन ईयर, सो देन यू कैन आस्क मी अगेन व्हेन डिड यू लास्ट टाइम कैरी आउट द सेटिस्फेक्शन सर्वे। तो अगर मैंने किया है एक्चुअली तो आई विल टेल यू कि यस लास्ट December 2021 we have carried out, so you can ask me कि please can you please show me the this one the results of the or the what is the conclusion based on that employee satisfaction survey, तो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा वो, ठीक है। अब स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा है कि आपको एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन चेक करना है, कौन बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। यू आर ऑडिटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड एंड बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट्स whatever the steps that organization is taking that you can audit, अगर उसके अंदर आपका नॉन कंप्लायंस मिलता है इट बिकम्स अ एनसी, नॉन कंप्लायंस आप वो पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर आ जाएगा, है ना। नाउ अबाइडिंग बाय मिनिमम वेज रूल्स, तो यू कैन आस्क, यू हैव अ राइट टू आस्क देम, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन को शो करना पड़ता है। नाउ इसमें ये हो सकता है कि जब आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का ऑडिट करते हो तब अगर दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विथ हिम, ही कैन से यू दैट यस इट इज विद द एचआर। फिर आप क्या करोगे, एक पॉइंट लेके रखोगे आपके यहाँ पे कि यस एचआर का जब ऑडिट आप करोगे या फिर एचआर का ऑडिट करने की टीम अगर कोई दूसरी है तो आप ये इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन करोगे और आप बोलोगे उनको कि प्लीज चेक दिस पॉइंट ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द एचआर सेक्शन, ठीक है। देन आई एम सेइंग मेडिकल इंश्योरेंस है फॉर एड्रेसिंग द नीड्स की, होता है एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं हमारा एक्सीडेंट अगर एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलने चाहिए, है ना, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट के लिए आप डॉक्यूमेंट नहीं मांगोगे, आप क्या करोगे, वेदर द वर्क इन्वायरमेंट इज प्रॉपर और नॉट, सर्टन थिंग एज अ ऑडिटर यू नीड टू ऑब्जर्व ऑल्सो, है ना। ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो कलेक्ट करते हैं ऑडिटिंग में हम क्या करते पता है, यू चेक द कंप्लायंस एंड यू कलेक्ट द ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस कि आपकी जो फाइंडिंग है उसको सपोर्ट करे वो। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट करने जाते हो, है ना, और आपको इस पॉइंट को चेक करना है कि वेदर द हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड और नॉट, तो क्या आप उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट मांगोगे, हर बार डॉक्यूमेंट मांगना जरूरी नहीं है। व्हाट यू विल डू, क्या कर सकते हो आप कि वर्क एनवायरनमेंट प्रॉपर है या नहीं है, We can ask for any grievances, complaint received, or any dispute with labor वन union. इज दैट, एक तो जो दैट इज वन, एंड सेकंडली यू कैन ऑब्जर्व ऑल्सो ना व्हेन यू आर टेकिंग अ राउंड ऑफ द शॉप फ्लोर, यू कैन चेक कि वहां पे नॉइज पोल्यूशन, एयर की क्वालिटी, लाइट एडिक्वेट लाइट वहां पर है या नहीं है, एक्सेसिव टेम्परेचर तो नहीं है वहां पे वर्किंग की कंडीशन में, है ना, एक्सेसिव फ्यूम जनरेशन तो नहीं है कहीं पे, लोगों को एडिक्वेट, Ergonomics कैसे है? हाँ एर्गोनॉमिक्स कैसे है, लोगों को प्रॉपर पीपीज वगैरह दी गई कि नहीं है, तो दिस थिंग एज अ ऑडिटर यू कैन ऑब्जर्व। नाउ व्हेन आई एम टेलिंग यू एज ऑडिटर आई एम जस्ट नॉट थिंकिंग यू पीपल एज ए इंटरनल ऑडिटर, मैं एक स्टेप आगे की सोच रहा हूँ कि यस यू यू कैन बिकम अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑल्सो, या फिर आप लोग आपके सप्लायर को ऑडिट करने भी जा सकते हो। सो दैट टाइम एज अ ऑडिटर हमको जो ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन दी योर पेपर ओनली, है ना, इट कैन बी बाय वे ऑफ इंटरव्यूइंग द पीपल, बाय वे ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप मुझे बताइए कि आई वांट healthy work environment or safety during the work environment, sorry safety during the working, मैं लगता हूँ कि यहाँ पे यह सेफ्टी ड्यूरिंग द वर्किंग है और हम उसको पीपीई वगैरह हमने उनको प्रोवाइड किया है, हाउ वी आर मीटिंग दैट, बाय वे ऑफ गिविंग द पीपीई। फॉर एग्जांपल यू सी हियर एम्प्लॉय सेफ्टी एट वर्क प्लेस होना चाहिए, ठीक है। अब सेफ्टी एट वर्क प्लेस होना चाहिए, हाउ दिस आर मेट, आपने सेफ्टी ऑडिट तो लिख दिया है, बट सेफ्टी एट वर्क प्लेस में आप ये बोल सकते हो कि आर यू प्रोवाइडिंग द पीपीईज, एंड देन जब हमने शॉप फ्लोर को ऑडिट किया तो पीपीज आर नॉट देयर,
तो सर्टन टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि उन्होंने लिखा हो, यू कैन क्लियरली से यू हैव डिटरमाइंड दैट एम्प्लॉइज आर योर इंटरेस्टेड पार्टी, वन ऑफ योर इंटरेस्टेड पार्टी, और उनकी रिक्वायरमेंट है कि सेफ्टी होना चाहिए वर्क प्लेस पे। अब आप उनको पीपीईज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, रिक्वायर्ड पीपीईज, और आप हाउ यू आर गारंटिंग द सेफ्टी ऑफ देयर वेलबींग। वहां पे कुछ रोटेटिंग पार्ट्स है जो कि प्रॉपरली गार्डेड नहीं है, हाउ यू आर, आपने पीपी भी दे दिया, ठीक है, उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी चाहिए थे वो दे दिया आपने, स्टिल आप ये ऑब्जेक्ट कर सकते हो एज ऑडिटर कि वहां पे सर्टन रोटेटिंग पार्ट्स है जो कि कवर्ड होने चाहिए, वो नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसको आइसोलेट नहीं किया गया है, प्रॉपर तरीके से उसको गार्डिंग नहीं किया गया है। सो आप लिख कुछ रहे हो बट एक्चुअली दिस इज नॉट सफिशिएंट। तो एज अ ऑडिटर यू कैन डिनाई दैट यस यू आर मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट, यू आर नॉट मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट। उन्होंने प्रॉपरली तरीके से उनको डिटरमाइन जो की है उसके ऊपर कैसे वो मीट करेंगे, वो प्रॉपर एक्शंस नहीं है। सो एज अ ऑडिटर आपको ऑब्जर्व करना है शॉप फ्लोर को या फिर जो भी एरिया को आप ऑडिट करते हो, है ना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेना है आपको, इंटरव्यू, बाय वे ऑफ इंटरव्यू, लोगों का इंटरव्यू जब लेते हो आप तो आप उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एज अ ऑब्जेक्टिव एविडेंस उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो इस तरह से जो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, आप अगर ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है, यू विल हैव दिस डॉक्यूमेंट, जस्ट गो एंड चेक, you will find that okay you have interested parties, maybe format will be different, है ना, every organization have their own format, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी कंसल्टेंट से अगर आप लोगों ने किया होगा तो everyone have their own way of making the formats, making the documentation। मेन चीज है आपको चेक करना है डिटरमाइन किया कि नहीं किया, और उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको डिटरमाइन किया कि नहीं किया। So this is all about 4.1 and 4.2. Let us move to the next clause, that is 4.3. Determining the scope of QMS. It is very very important now, है ना, कि हमारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन का हम डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज यू सी द एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्कोप विल बी डिफरेंट दो द स्टैंडर्ड इज सेम। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्कोप रहेगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, इट विल बी डिफरेंट देन द अदर इंडस्ट्री। इवन सिमिलर प्रोडक्ट में जो इंडस्ट्री है उनके भी सबके स्कोप अलग अलग रहते हैं, हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो आप का जो ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो कैसे डिटरमाइन करना है। 9001 बोलता है कि यस यू नीड टू डिटरमाइन। So Miss Sanmani, can you please read it up to this one from here? Miss Sanmani, can you please read this? Yes, sir. Yeah. The organization shall determine the boundaries and applicability of the quality management system to establish its scopes. When determining the scope, the organization shall consider A. The external and internal issues referred to it in 4.1, the requirements of relevant interested parties referred to in 4.2, the products and services of the organization. Okay, enough. The organization shall apply all the required. Okay, this we will go later on. So the standard is asking you कि ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है द बाउंड्रीज, है ना, कि विद इन विच यू विल ऑपरेट यूर बाउंड्री। मीन्स आपकी फिजिकल बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना, फिजिकल बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स अ बाउंड्री ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। और जब हमको स्कोप हम डिटरमाइन करते हैं तो हमको क्या क्या कंसीडर करना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरेस्टेड
पार्टीज है, रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को आपको कंसीडर करना है ना। अब वो स्कोप में डालना नहीं है हमको, आपको कंसीडर करना है। एंड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, उस सबको मिला के आपको बताना कि यस आपकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आएगा, है ना, कहां तक वो, जैसे आपकी सप्लायर है, दे आर यूर वन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज, तो इसका मतलब आपका जो स्कोप रहता है क्यूएमएस का, उसके अंदर स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्कोप है क्यूएमएस का, उसके अंदर तो आपके सप्लायर भी आते हैं, है ना, दे आर आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्री के बाहर है, बट वो आपके क्यूएमएस के अंदर है ना। आपका सप्लायर आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। यू आर हैविंग सर्टेन कंट्रोल ऑन योर प्रोवाइडर, एक्सटर्नल प्रोवाइडर या एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर, उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, वो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है ना। यू आर हैविंग कंट्रोल ऑन देम बाय वे ऑफ, आप उनका जो मटेरियल आता है तो आप उसको रिव्यू करते हो, उनको फीडबैक देते हो। सिमिलरली जो कस्टमर है वो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम, यू आर गेटिंग सर्टन इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। आपके क्वालिटी मैनेजमेंट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर ये 9001 की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करने के लिए आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो। सर्टन क्लॉजेस आर देयर इन द स्टैंडर्ड in which you need to have control on the external providers, या फिर जब हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तब आपको रिक्वायरमेंट कहां से आती है, कस्टमर से आती है। सो बेसिकली कस्टमर आपके स्कोप में है। तो ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि नो नो कस्टमर से हमसे कुछ नहीं करना है और एक्सटर्नल प्रोवाइडर से हमको कुछ नहीं करना है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ अवर क्यूएमएस, नो दे आर पार्ट ऑफ योर क्यूएमएस, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि आपको इन सब चीजों को कंसीडर करना है। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन शैल अप्लाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इफ दे आर अप्लीकेबल। अब अगर कोई आपको क्वेश्चन करता है कि सर ये हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल है या नहीं है, या फिर कहां पे लिखा है ऐसा कि 9001 की ये रिक्वायरमेंट हमको मीट करना है, दिस इज गिवन हियर। क्या बोल रहे हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल अप्लाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो जो जहां जहां पे रिक्वायरमेंट्स मेंशन की है इस स्टैंडर्ड में, जितना लिखा हुआ है सभी क्लॉज में, आपको अप्लाई करना है अगर वो आपके लिए अप्लीकेबल है ना। सर्टन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट अप्लीकेबल, उसके लिए भी दिया हुआ है। The scope of organization's quality management system shall be available and maintained as documented information. अभी तक हमने 4.1, 4.2 देखा, कहीं पे भी documented information था क्या? Have you seen anywhere documented information in both the requirements? कहीं पे now I think documented information you are seeing it for the first time, आपको पहली बार दिख रहा होगा documented information। इसका मतलब होता Yes, sir. है, हाँ इसका मतलब है कि जैसे लिस्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज है ना, वो नहीं रहा तो भी चलेगा। इन द सेंस मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूं एज ऑडिटर, पर आपको मुझे वो बताना पड़ेगा। आप मुझे फिर लिख के बता दो वहां के वही कि नहीं ये हमारी है, मैं 4 लोगों को पूछूंगा तो सेम उन्होंने सेम बोलने को ना, फिर या फिर जो एक्शंस आपने लिए मुझे वो इविडेंट होने चाहिए। इसलिए स्टैंडर्ड ने ये नहीं बोला कि आपको उनको नोट डाउन करके रखना है कहीं पे, बट स्कोप जो है, द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी अवेलेबल। इसका मतलब मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर जब आप डॉक्यूमेंट का ऑडिट करने जाओगे, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर जब आपके पास आते हैं, आपके पास आपके क्यूएमएस का स्कोप होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, वो क्लियर कट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। So it shall be available and documented. Okay, it should be as a documented information. अब documented information it can be in soft also. Never necessary कि उन्होंने बोला कि पेपर पे छाप के दो. It can be in any media. Okay, देखिए यहाँ पे documented information means information required to be controlled and maintained by an organization, ठीक है, and the medium on which it is contained. इसका मतलब अगर आपने उसको सॉफ्ट में रखा है तो उस पर्टिकुलर
चीज को आपको मेंटेन रखना है, कंट्रोल रखना है, ताकि जो लेटेस्ट रिवीजन है वही लोगों के पास अवेलेबल रहे, है ना। इट इज अ मीनिंगफुल डाटा जो आपको कंट्रोल करना है और मेंटेन भी रखना है उसको। और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्मेट एंड मीडिया एंड फ्रॉम एनी सोर्स। अब इसीलिए मैंने बोला कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जहां पे बोला है डजंट मीन कि आपको हार्ड कॉपी निकाल के दिखाना ही पड़ेगा, नो वे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि एवरीथिंग विल बी इन अ सॉफ्ट फॉर्मेट, है ना, डेफिनेटली कुछ वर्क इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो रहती है शॉप फ्लोर पे, आपको आप बोलोगे कि नहीं हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, कीजिए, नो इशू। एज अ आईएसओ ऑडिटर कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है। अगर किसी ने बोला कि नहीं हार्ड कॉपी में होना चाहिए, यू कैन शो दैट ऑडिटर द इंफॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्मेट एंड एनी मीडिया। तो फिर वो पेपर पे हो सकता है, पेपर मीडिया पे हो सकता है, या फिर वो सॉफ्ट में हो सकता है। ठीक है, तो स्कोप होना चाहिए और स्कोप शैल स्टेट। अब स्कोप में क्या लिखा होना चाहिए, ये तो बोला उन्होंने कि स्कोप को डिटरमाइन करते हो आपको सब कंसीडर करना है, ये सब चीजें डालना नहीं स्कोप में, ठीक है। बट स्कोप में क्या होना चाहिए, सो द स्कोप होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास, और स्कोप के अंदर क्या होना चाहिए, दिस इज गिवन हियर ना। तो स्कोप के अंदर क्या होना चाहिए, द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कवर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। सो जैसे आपने मुझे बताया कि इट इज यूज फॉर द कैटल, है ना, और किसके लिए यूज होता है आपका प्रोडक्ट, एनिमल, एनिमल फीड के लिए एंड Pharma application. फार्मा एप्लीकेशन। ओके, नाउ दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ योर प्रोडक्ट, है ना। नाउ अगर आपको लगता है कि नहीं जो कैटल के लिए मींस जो एनिमल फीड के लिए जाता है उसको हम एज अ हमारे क्यूएमएस में नहीं लेंगे, वो हम उसको चलने देंगे, बट जो फार्मा के लिए जो बनता है उसको हम हमारे क्यूएमएस में कंट्रोल करेंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, सो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो यू कैन हैव कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन ही हम उसको 9001 में लेना चाहते हैं और पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन हम नहीं लेना चाहते। दैट्स वाई आपके स्कोप में लिखा होना चाहिए। अगर आप दोनों के लिए करते हो तो यू कैन से, हम एग्जांपल में जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो आपकी जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कवर्ड है वो उसके अंदर आ जाना चाहिए आपके स्कोप में। और अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज नॉट अप्लीकेबल फॉर यू, जैसे कि डिजाइनिंग है, अगर आपको लगता है कि डिजाइनिंग मेरे लिए अप्लीकेबल नहीं है, सर्विस आप प्रोवाइड नहीं करते हो, समझो सर्विस इज बेसिकली होने के बाद में अगर आप इंस्टॉलेशन के लिए या फिर वो प्रोडक्ट के यूज के लिए अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हो, सो यू कैन एक्सक्लूड दैट रिक्वायरमेंट। आप ये बोल सकते हो कि यस दैट इज नॉट अप्लीकेबल, बट जो नॉट अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट रहेगी आपके स्कोप में लिखी होनी चाहिए, है ना, वो लिखी होनी चाहिए। जैसे डिजाइनिंग है मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जो कुछ चेयर बनाती है ना, मोल्डेड चेयर बनाती है। अब मोल्डेड चेयर बनाती है इसका मतलब डिजाइन तो करना पड़ेगा उनको, जो प्लास्टिक की चेयर बनती है तो डिजाइन कहाँ से ले रहा है वो, एज अ कस्टमर मैं उनको दे रहा हूं क्या कि नहीं मुझे इस तरह की डिजाइन की बना के दो आप, हु इज मेकिंग दैट, डिजाइन कौन करता है उसका कि उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हु इज डिजाइनिंग दैट, मोल्डिंग चेयर में, प्लास्टिक मोल्डेड चेयर में, The मैन्युफैक्चरर। manufacturer. हाँ मैन्युफैक्चरर। यस, तो इसका मतलब इट इज अप्लीकेबल टू देम, सो दे कैनॉट एक्सक्लूड डिजाइनिंग 8.3, आप वो उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, है ना। बट डेफिनेटली कहीं पे अगर सर्विस रिलेटेड है सो दे कैन से सर्विसिंग इज नॉट अप्लीकेबल, वहां पे लिख सकते हैं कि सर्विसिंग इज नॉट अप्लीकेबल, और उसके लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि यस वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस आफ्टर द सेल्स, दैट्स व्हाई सर्विसिंग इज एक्सक्लूडेड। ठीक है ना। नाउ देयर आर सर्टेन इंडस्ट्री जो कि
डिजाइनिंग नहीं करती है, दे जस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड्स, है ना, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, या फिर कस्टमर देते हैं, कस्टमर उनको बताते हैं कि प्रिपेयर इट एज पर दिस, तो दे जस्ट फॉलो द कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड कस्टमर डिजाइन डेटा। उस टाइम पे जब आप देखोगे 8.3, जब हम क्लॉजेस पे जाएंगे, सो जो डिजाइनिंग का है इट इज नॉट अप्लीकेबल टू देम, क्योंकि उसके रिलेटेड एक्टिविटी वो करते ही नहीं है, डिजाइनिंग इज नॉट देयर पार्ट, इट इज कंप्लीटली गिवन बाय द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैब्रिकेशन करता है बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, कस्टमर ने मुझे बोला कि मुझे आप एक टेबल बना के दो जिसके अंदर इतने मिलीमीटर का प्लाईवुड यूज करना है, इतने मिलीमीटर का ये यूज करना है, इतने ये वाले पर्टिकुलर हिंजेस यूज करना है, तो आई हैव नॉट डिजाइन दैट प्रोडक्ट, कस्टमर हैज गिवन मी द रिक्वायरमेंट, उसके बेस पे मैंने बना दिया। इट मींस डिजाइनिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, अब वो वेट ले पाएगा लोगों का, नहीं ले पाएगा, दैट आई डोंट नो, क्योंकि वो तो कस्टमर ने मुझे बताया कि इतने मिलीमीटर का बना के दे दो मुझे, सो आई एम गिविंग दैट। इन सच केसेस आई एम नॉट required to follow the requirements of that particular clause number। तो मेरे स्कोप में इसका मतलब क्या हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो आप डिटरमाइन कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर उस पर्टिकुलर क्लॉज की रिक्वायरमेंट्स आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। बट ऐसा हम बहुत सारे क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट निकाल नहीं सकते कि नहीं ये क्लॉज हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं, हम तो ये करते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे हम तो ट्रेनिंग देते ही नहीं है, ट्रेनिंग रिलेटेड क्लॉज हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है, नो वे। ओके, उसके कारण यहां पर क्लियर कट लिखा है स्टैंडर्ड में, कंफॉर्मिटी टू दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ओनली बी क्लेम्ड, है ना, आप तभी बोल सकते हो कि नहीं हम 9001 2015 को फॉलो करते हैं, हम कंफर्म करते हैं, इफ द रिक्वायरमेंट्स विच यू डिटरमाइन आर नॉट अप्लीकेबल, जो आप डिटरमाइन करते हो कि ये रिक्वायरमेंट मेरे लिए अप्लीकेबल नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशंस की जो एबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर द कंफॉर्मिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो उसको इंपैक्ट नहीं करती हो, एंड एनहांस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो जैसे मैंने बताया ना कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, यू कैन नॉट से कि नहीं ट्रेनिंग तो हमारे लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है, या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारी मशीन्स तो मेंटेनेंस फ्री है, तो दैट रिक्वायरमेंट डजंट, वी विल नॉट फॉलो दैट रिक्वायरमेंट, नो वे, है ना, वो नहीं चलेगा, because it is going to impact the conformity of your products and services। हाँ, डिजाइन सर्विसिंग आप बोल सकते हो क्योंकि you are not providing, so you are not responsible, got it। तो टाइप्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड जो है वो आपके स्कोप में आना चाहिए। अब स्कोप कैसे लिखना है या स्कोप कैसे आएगा या कहां पे रहता है स्कोप, आपको पता है, वेयर टू फाइंड द स्कोप, आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्यूएमएस का स्कोप कहां पे लिखा होगा, या टेल मी कहां पे होगा आपका स्कोप, कहां पे लिखा होगा, कहां पे मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी मैनुअल है विच इज अ अपेक्स डॉक्यूमेंट, लेवल 1 का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन की लेवल अगर आपको नहीं पता है तो नॉर्मली, है ना, यू कैन डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। कई पे लोग 5 पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं उसको, है ना। सो नॉर्मली आई एम टेकिंग इट एज अ लेवल 1। लेवल 1 में आपका आता है क्वालिटी मैनुअल एंड एसोसिएटेड अनेक्शर्स वगैरह जो रहते हैं वो उसके। क्वालिटी मैनुअल में आपका ऑर्गेनाइजेशन के अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनुअल है तो आप प्लीज जाके एक बार देखिए, है ना, इट कंटेन्स वेरियस इंफॉर्मेशन, है ना। उसके अंदर स्कोप भी होता है, स्कोप होना कहां पे होना चाहिए दैट डजंट से, है ना, 9001 नॉर्मली जो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो स्कोप होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्वालिटी मैनुअल में। सेकंड लेवल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इट कंटेन्स द क्वालिटी प्रोसीजर्स, है ना, वी कॉल इट क्वालिटी प्रोसीजर्स। तो ट्रेनिंग कैसे, ट्रेनिंग की एक प्रोसीजर है ना, जैसे ट्रेनिंग जो हमको कंडक्ट करना है एक्टिविटी, ट्रेनिंग एज अ प्रोसेस, अब उस प्रोसेस को किस तरह से आप करोगे या मैनेजमेंट रिव्यू किस तरह से करोगे, ऑडिटिंग किस तरह से करोगे, तो दीज आर ऑल कॉल्ड द क्वालिटी प्रोसीजर्स, है ना।
या प्रोसीजर फॉर परचेस रहती है ना, या प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर होता है कि किस किस तरह से आप करोगे, जिसके अंदर पूरा आप लिखते हो, गाइडलाइन रहती है आपकी. सो दीज आर बेसिकली लेवल 2 डॉक्यूमेंट. एंड देन कम्स लेवल 3. द लेवल 3 डॉक्यूमेंट इज बेसिकली योर वर्क इंस्ट्रक्शंस, योर SOPs, जो जिसको देख के हम काम करते हैं, जो कि बनती है बेस्ड ऑन द क्वालिटी प्रोसीजर्स. एंड देन कम्स द लेवल 4. दीज आर द फॉर्मेट्स, है ना. इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं फॉर्मेट्स, जो आप चेकशीट्स भरते हो, प्रोडक्शन के डेटा भरते हो, टेस्टिंग के डाटा जिसमें आप देते हो ब्लैंक फॉर्मेट्स में. दीज आर द फॉर्मेट्स. अगेन वो बनते हैं बेस्ड ऑन द SOPs या वर्क इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी गाइडलाइंस होती है उसके बेस पे. सो दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर. और उसमें से क्वालिटी मैनुअल में आपको स्कोप मिल जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का. नाउ अगर आपने सर्टिफिकेट देखा होगा, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का स्कोप और आपके ऑर्गेनाइजेशन के QMS का स्कोप स्लाइटली वेरी भी हो सकता है कभी कभी, है ना. जैसे एक इंडस्ट्री का मैंने निकाला था, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फॉर एरोस्पेस, मेडिकल, ऑटोमोटिव, प्लास्टिक. तो ये उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजों के लिए करते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस all these services, manufacturing services for all these application are included in their scope. Means उनके ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजों का जो भी होता है, उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है, वो आप जाके एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर की बात कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल ऑडिटर विल वेरीफाई ऑल दीज थिंग्स, है ना. देन सप्लायर, सप्लाई ऑफ मशीन पार्ट्स, कंपोनेंट्स, फैब्रिकेटेड पार्ट्स मेड फ्रॉम वेरियस पॉलीमर, किससे बने हुए, एंड मेटेलिक्स. एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेशन सर्विसेज, उन्होंने सभी लिया है. उनकी सर्विसेज भी उनके लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. वो कुछ मशीन पार्ट्स को सप्लाई भी करते हैं, ठीक है, और वो मैन्युफैक्चर भी करते हैं. गॉट इट. नाउ आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जब स्कोप बनाना है तो आप क्या लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग. पहले तो आप लिखोगे कि जो आपका लोकेशन है बेसिकली, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहता है स्कोप में और आपका लोकेशन भी होता है. ISO सर्टिफिकेट आप देखोगे, नाम के साथ लोकेशन भी होता है, क्योंकि हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के 4-5 प्लांट हो. सो वेदर ऑल दिस थिंग्स आर, ऑल दिस प्लांट्स आर कवर्ड अंडर दैट और नॉट. तो कभी कभी अनेक्शर भी रहता है. हाँ, yes, any questions? Okay, so you can write manufacturing and supply of. Now आपके प्रोडक्ट क्या होते हैं? Can you tell me 1 or 2 names of your product? Mr. Prashant, Ms. Sanmani, we will create a scope for your organization. Just correct me if I'm writing anything wrong, है ना? Advanced enzymes. It's a system or what? Advanced enzyme? It's a company name, sir. Manufacturing group. So it is what, advanced enzymes manufacturing, or the company name I am talking about? Advanced Enzyme Technologies. Okay, advanced enzyme technology. Yeah, Advanced Enzyme Technology. Technology. Okay. है ना? What is the location? You have only one plant or more than one plant? More than one plant. More than one plant. है ना? So now you need to write the address here, है ना? बिकॉज अगर आपकी QMS के अंदर आपने सभी प्लांट को लिया है तो यू कैन राइट, है ना, प्लांट 1, ठीक है, वो आप उसका डाल सकते हो लोकेशन, देन प्लांट 2 उनकी लोकेशन, है ना. नाउ कमिंग टू द स्कोप स्टेटमेंट. अब आप बोलोगे यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करते हो एंड सप्लाई भी करते हो, है ना. यू आर मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो एंड सप्लाइंग ऑल्सो. सो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ, है ना. अभी क्या रहता है आपका, केमिकल्स होता है, क्या होता है बेसिकली, और इट इज से सॉलिड प्रोडक्ट्स, क्या क्या नाम से आप बोलते हो उनको?
Enzyme products, हाँ एंजाइम, तो finished goods. एंजाइम प्रोडक्ट्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट है ना। अब ये कहाँ पे यूज होता है? यूज इन एनिमल फीड एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑल्सो Pharma products. एप्लीकेशन, ठीक है। यस, तो नाउ आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं ऑडिट करने के लिए आऊंगा, so all the products, enzyme products that you are manufacturing and supplying to for the application of animal feed as well as pharmaceutical application, ये जितनी भी एक्टिविटी होती है, right from procurement of the product till the dispatch of the product, क्योंकि सप्लाई भी आपने उसमें लिया है ना, so I will audit that one. So your scope will be like this one, scope statement. Now आप मुझे बताइए कि आर योर फॉर्मुलेशंस आर मेड बाय योरसेल्फ? जो फॉर्मुलेशंस होते हो वो आप डिजाइन करते हो या फिर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप बनाते हो? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन होती है सर, उसमें हम लोग मतलब डिजाइनिंग करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं। तो डिजाइनिंग आप करते हो है ना, तो देन यू कैन नॉट राइट नॉट अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं लिख सकते हो आप, है ना। नॉट अप्लीकेबल कुछ भी नहीं है, फिर आप यू डोंट नीड टू मेंशन, है ना। इवन इसके अंदर ये भी आ जाता है आपका कि डिजाइनिंग ऑल्सो आ जाता है ना। डिजाइनिंग, ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई, क्योंकि आप डिजाइन भी कर रहे हो प्रोडक्ट, इट इज नॉट कि जनरल हम किसी इससे बना रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज डिजाइनिंग। जैसे आपको टायर पता है ना, टायर जो है हर इंडस्ट्री का देखोगे आप डिफरेंट लिखेगा, इट इज नॉट कि हाँ डेफिनेटली उसका इनसाइड का जो रिम डाया वगैरह सेम रहता है, बट उनके जो थ्रेड्स होते हैं, उनकी जो डिजाइन होती है, सबका अलग अलग होता है, सब अपना अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। सो दे आर एक्चुअली डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। जैसे कार है, सबकी कार अलग अलग है, तो दे आर डिजाइनिंग देयर प्रोडक्ट। तो सिमिलरली योर प्रोडक्ट एंड समबडी एल्स प्रोडक्ट विल बी सेम, will not be same, it is different. You are designing, they are also designing, but both the products will have different designs. इसलिए आप डिजाइन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो आपके प्रोडक्ट के लिए। देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जिसके अंदर यू आर नॉट डिजाइन, डिजाइन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हाँ, प्रोसेस डिजाइन हर कोई करता है, बट हम बात करें प्रोडक्ट डिजाइन की। फॉर एग्जाम्पल किसी को पाइप बनाना है, ठीक है ना, पाइप बनाना है, तो पाइप की रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड, हमें आईएस स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा जिसके अंदर Similarly, हाँ यस, हाँ बोलिए प्रशांत जी। sir, we do have some products. We do have some products which follow the pharmaceutical standards like IP or US standards, pharmacopoeia standards. या सो उसके अंदर पर क्या क्या डालना है, क्या क्या केमिकल्स यूज करना है, कितना यूज करना है, सब कुछ दिया होता है, या फिर आप डिजाइन करते हो उसको, या फिर आप उनका स्टैंडर्ड फॉलो करते हो कि जस्ट ये इतना लिया, ये इतना लिया और दोनों को मिला के दे दिया, लाइक दैट? These standards are for individual molecules or individual product that is created as IP or USP. हाँ ओके, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट अप्लीकेबल में, आप लिख सकते हो कि डिजाइन जो है ना आपका, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना। फिर आप नॉट रिस्पॉन्सिबल, और जो एनिमल फीड वाला है वो आप डिजाइन करते हो अपने हिसाब से, है ना। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, है ना। और फिर आपको इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, why you are not design responsible, because इंटरनेशनल, फिर नाम आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो भी है, स्टैंडर्ड्स, फिर आप नाम डाल दीजिए इसमें जो भी है, आर फॉलोड, ठीक है। सो
जो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, वो पर्टिकुलर क्लॉज की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं रहेगी, उस पर्टिकुलर क्लॉज की जो 8.3 है। क्लियर है नाउ हाउ टू प्रिपेयर अ स्कोप स्टेटमेंट? या कुछ डाउट है तो यू कैन प्रिपेयर। अब्बास, नाउ फॉर योर प्रोडक्ट इट्स अ पाइप, यू आर मेकिंग द पाइप? No, sir. Different types of profile, sir. Sorry, different types of profile. The profiles, yes, sir. Profile of what? Which material? Sir, Which material? like we produce aluminium, sir. है ना, प्रोफाइल ऑफ एल्यूमिनियम है ना। Manufacturing of aluminium profiles, we can ask. हाँ, ओके, एल्यूमिनियम। आई एम जस्ट राइटिंग कि क्या है आपका प्रोडक्ट हो ना। सो आपके प्लांट का आप नाम डाल दोगे यहाँ पे, है ना, मान एल्यूमिनियम। ओके, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, है ना। Yes, sir. है ना, MAAN. एम Okay, fine. एम डबल है ना। फिर आपका एक ही प्लांट होगा तो फिर आप प्लांट का जो एड्रेस है वो आएगा यहाँ पर। नाउ Yes, sir. आप बताइए मुझे कि जो प्रोफाइल बनता है, इज इट एज पर एनी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, आईएस हाँ. स्टैंडर्ड, या उसके हिसाब से बनता है? उसके अंदर दिया है थिकनेस कितना होना चाहिए, Yes, विड्थ sir. कितना होना चाहिए, रेडियस कितना होना चाहिए? Yes, sir. We have a tool room department. मतलब हम जो प्रोफाइल आती है वो हम डिजाइन नहीं करते. We just check the tolerance as per the IS and ASTM standards. हाँ ठीक है, तो जब एज ए कस्टमर आपको क्या बोलता है व्हेन दे ऑर्डर, व्हाट दे ऑर्डर, Yes, sir. क्या ऑर्डर वो करते हैं? they send us the profile drawing, sir. वो हमें एक प्रोफाइल ड्राइंग देते हैं. ओके, तो इसका मतलब उनका ड्राइंग है वो, है ना, तो उन्होंने डिजाइन किया कि Yes, बस sir. आप Yes. थिकनेस कितना हाँ. रखना है या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर Yeah. कितना होना चाहिए, वो सब वहां से आता है, ठीक है Correct. ना। हाँ तो सर, वहीं से आते हैं. बेसिकली देन यू आर नॉट डिजाइन रिस्पॉन्सिबल, यू आर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन. सप्लाई, Yes, sir. है ना, Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ, Yes, sir. है ना, प्रोफाइल, Aluminium profile. है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम। सिर्फ एल्यूमिनियम यूज होता है ना, बाकी कुछ नहीं होता है, हाँ नहीं सर, बस एल्यूमिनियम. है ना। बस दैट इज सिंपल स्कोप इज देयर, है ना। अब इसके अंदर आपको अगर चाहिए तो आप उसके अंदर अगर आपको डिस्टिंग्विशन करना है कि आपके पूरे प्लांट में जितना भी बनता है सबको इसके स्कोप में लेना है, सो आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ प्रोफाइल प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, तो हो गया। तो इस प्रोसेस के लिए, एल्यूमिनियम की प्रोफाइल बनाने के लिए, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टिल द डिस्पैच, सब आपके अंडर आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, है ना। अब इसके अंदर आप बोल सकते हो नॉट रिस्पॉन्सिबल डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स, डिजाइन नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, ओके। सो यू कैन से नॉट अप्लीकेबल, कौन सा है क्लॉज हमारा, क्लॉज नंबर 8.3, है ना, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जस्टिफिकेशन क्या होता है, व्हाई यू आर नॉट डिजाइन रिस्पॉन्सिबल, है ना, द प्रोफाइल्स आर मेड बेस्ड ऑन द ड्रॉइंग्स रिसीव्ड, कस्टमर ड्राइंग. है ना, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड कस्टमर. फॉलोइंग, उसके जो टॉलरेंसेस भी कस्टमर ही देता है फिर। यस सर, समटाइम मतलब वो पूरी ड्राइंग ही बना के देता है, बट अगर हमें डिसएग्री करना रहता है कुछ टॉलरेंस पे तो वी डिस्कस और फिर हम उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं. ओके ठीक है ना, बिकॉज वी द प्रोफाइल्स आर मेड बेस्ड ऑन द ड्राइंग रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, बस हो गया। यू कैन, दिस इज जस्टिफिकेशन, क्योंकि आप डिजाइन ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो यू आर फॉर योर स्कोप नाउ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिखा गया था कि इस स्टैंडर्ड की सभी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है ना। दिस स्टैंडर्ड सेज हियर, the organization shall apply all the requirements of this standard if they are applicable within the determined scope of quality management system. But अगर कोई चीजें नहीं है आपके applicable, तो उन्होंने लिखा है कि not being applicable, आप particular clauses को हटा सकते हो from your QMS. But उनको हटाने के बाद आपकी जो ability है to produce a product meeting the
कस्टमर रिक्वायरमेंट इज नॉट अफेक्टेड। तो डेफिनेटली आप अगर डिजाइनिंग कर ही नहीं रहे हो तो कस्टमर की फॉलो करोगे तो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट प्रोडक्ट यू हैव सप्लाइड टू देम, ठीक है। बट आपके जो स्कोप स्टेटमेंट रहता है उसके अंदर वो आना चाहिए, ठीक है। दिस इज अबाउट द राइटिंग द स्कोप। नाउ अनदर स्कोप एग्जांपल आपको बताऊं मैं, designing, manufacturing and distribution of hardened gear as per customer specification and requirements in compliance with all legal, that is statutory and regulatory requirement। ऐसा भी आप स्कोप में लिख सकते हो, है ना। जैसे हमने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट्स फॉर एनिमल फीड एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन मीटिंग ऑल द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। दैट विल बिकम योर स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। इवन आप कॉन्टेस्ट एंड इंटरेस्टेड पार्टीज के बारे में लिख सकते हो नीचे कि वी कंसीडर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज ड्यूरिंग डेली ऑपरेशंस एंड ड्यूरिंग मैनेजमेंट रिव्यू। इंटरेस्टेड पार्टीज इंक्लूड, दीज आर द इंटरेस्टेड पार्टीज। हो गया आपके स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में नीचे लिख के आ गया। ये चीजें आपके जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर नहीं आएगा। सर्टिफिकेट में नॉर्मली आता है दिस वन, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दिस थिंग्स विल कम इन द ISO सर्टिफिकेट, ठीक है। ओके, सो it's almost 2:30 now. So we will just have a 2-3 minutes break, and then we will start with the clause number 4.4. Okay, just 2 minutes break. Abbas, could you please read this clause 4.4? The organization shall establish, implement, maintain, and continually improve a quality management system, include the process needed and their interactions in accordance with the requirement of this international standard. Okay, okay. So again a shall has come here. It means the organization needs to establish, implement, maintain and continually improve the QMS, okay, the quality management system, including the processes needed and their interaction in accordance with the requirement of this इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और उस इंप्लीमेंट करने के बाद उस QMS को मेंटेन करने के साथ साथ कंटिन्यूअली इंप्रूव भी करना पड़ेगा ना। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो आप फिर ये कैसे वेरीफाई करोगे, वेदर दे हैव इंप्लीमेंटेड, वेदर दे हैव एस्टेब्लिश, वेदर दे हैव मेंटेन्ड एंड वेदर दे आर कंटिन्यूअली इंप्रूविंग और नॉट। तो आपको देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन, जब आप ऑडिट करोगे पूरा प्रोसेस का तो आपको पता चलता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद दिस क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मींस 9001 के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किया है कि नहीं है, मेंटेन कर रहे कि नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल मेंटेन करना मींस आपने इंप्लीमेंट तो कर दिया कि यस वंस इन ईयर वी विल रिव्यू, बट आप रिव्यू नहीं कर रहे हो तो इट मींस यू आर नॉट मेंटेनिंग। अब आपने मेंटेन भी कर रहे हो बट यू आर नॉट कंटिन्यूअली इंप्रूविंग। अब कंटिन्यूअली इंप्रूव करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तब के जाके आप इंप्रूव करोगे। अब कंटिन्यूअली इंप्रूव करने के लिए जो इनपुट लगता है दैट यू विल गेट थ्रू द मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, थ्रू इंटरनल ऑडिट्स। जब आप किसी सिस्टम को ऑडिट करते हो तब आपको पता चलता है कि कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कोई गैप्स तो नहीं है। फिर वो गैप को फुलफिल करने के लिए आप कुछ एक्शंस लोगे। इट मींस दैट जो भी एक्शन आप परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए लेते हो दैट इज अ इंप्रूवमेंट। तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस 4.1।
Now, additionally, requirement is that the organization shall determine the processes. Organization क्या determine करना है? Processes को determine करना है which are needed for the QMS, that is quality management system, and their application throughout the organization. अब आपको प्रोसेसेस डिटरमाइन करनी है. प्रोसेसेस डजंट मीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन. जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं. मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस. परचेसिंग इज अ प्रोसेस. ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस, है ना. ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंस एंड अवेयरनेस, है ना. मेंटेनेंस, है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस इज अ प्रोसेस. ठीक है. Product release is one of the process. Inspection and testing is one of the process. Monitoring, measurement, है ना, improvement is one of the process, है ना. The planning, production planning जो होता है, it is also one of the process. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोसेसेस को डिटरमाइन करना है कि आपके पास कौन सी एक्टिविटीज होती है, उसके बेस पे क्या क्या प्रोसेसेस है आपके यहाँ पे, है ना. डॉक्यूमेंटेशन, है ना. डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो एक्टिविटी है तो इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. स्टोरेज एंड जो स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन जो है, स्टोर्स है. स्टोर्स इज अ डिपार्टमेंट, बट व्हाट इज द प्रोसेस? स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन. आप स्टोर क्यों करते हो मटेरियल को? प्रिजर्व करने के लिए. यू आर स्टोरिंग इट टू प्रिजर्व. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, इट इज अ शाल अगेन, है ना. आपको तो डिटरमाइन करना है प्रोसेसेस, एंड द ऑर्गेनाइजेशन शाल determine the inputs required and the outputs expected from these processes. कोई भी प्रोसेस में, जैसे मैंने पहले दिन बताया था, देयर विल बी अ इनपुट, देयर विल बी अ एक्टिविटी और प्रोसेस, एंड देन देयर विल बी अ आउटपुट. जैसे मेंटेनेंस है तो उसके लिए इनपुट हमने बताया था कि प्रोडक्शन प्लानिंग से इनपुट आएगा, प्रोडक्शन से आएगा, या फिर जो हमारे यूजर मैनुअल्स होते हैं उसमें से इनपुट आएगा फॉर मेंटेनेंस ऑफ द मशीन. एंड देन what is the output expected from the maintenance process? Maintenance process से output क्या हम चाहते हैं? The upkeeping of the machine, the uptime of the machine, वो बड़ा होना चाहिए. Means we want the machine without any breakdown, sudden breakdowns. That is the output. So आपको हर एक प्रोसेस का इनपुट डिटरमाइन करना है और उनका आउटपुट जो आपके एक्सपेक्टेड है वो डिटरमाइन करके रखने हैं. The determine the sequence and interaction of these processes. तो various processes जैसे maintenance है, how it is interacting, what will be their sequence and what will be their interactions. तो मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा जिसके अंदर it covers how your processes are interacting with each other. For example, customer. So रिव्यू जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, प्रोडक्ट रिव्यू जो हम बोलते हैं, या हमारी जो ऑर्डर आती है वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करती है ना. हियर इट इज द कस्टमर, हियर इट इज फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट which interacts with the customer on what? On the product related information as well as the feedback related to our products. कस्टमर से मार्केटिंग के पास आता है, मार्केटिंग से फिर प्लानिंग के पास, जो प्रोडक्शन वगैरह है वहां से सब प्रोडक्शन वगैरह होके वापस वो कस्टमर के पास पहुंचता है, और कस्टमर से वापस हमारे पास फीडबैक आता है बाय वे ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, बाय वे ऑफ से फीडबैक ऑन आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सो सभी प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड है और उनके सीक्वेंस भी होते हैं. Then determine and apply the criteria and methods, including monitoring, measurement, and related performance indicators needed to ensure the effective operation and control of these processes. तो आप how you are monitoring a maintenance process or how you are monitoring the production process वो properly हो रही है नहीं आ रही, या how you are monitoring the inspection and testing process, और how you are monitoring the training process. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग है ना,
How you will monitor whether training is effective or not? There are various ways, है ना. ट्रेनिंग प्रोसेस है. ट्रेनिंग से हम क्या चाहते हैं? स्किल्स एनहांस होनी चाहिए, एनहांसमेंट ऑफ द स्किल. व्हाट इज द आउटपुट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोसेस? कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका कॉम्पिटेंस जो है वो इंप्रूव हो. ठीक है. नाउ हाउ यू विल मॉनिटर वेदर दिस प्रोसेस आर properly doing their work or not, whether they are performing rightly or not. So there are various ways of monitoring these processes. जैसे कि ट्रेनिंग में कैसे मॉनिटर करूंगा? I will check plan versus achieved. How many trainings they have planned, how many training they have done actually. So I can check the percentage. Number 2, I can check the coverage. How many people they have planned and how many people they have covered for the training. Number 3, I can monitor their training effectiveness by way of carrying out the training effectiveness evaluation. I can monitor the customer complaints related to the lack of knowledge or lack of competence of the people. अगर आपके पास so many complaints are there because of the issues related to the manpower, because of the lack of skill, इसका मतलब हमारी जो ट्रेनिंग प्रोसेस है it is not effective. सिमिलर वे मेंटेनेंस में हम क्या कर सकते हैं? देयर इज अ MTBF. सबसे पहले तो हम डाउन टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, मशीन डाउन टाइम. देन देयर इज अ MTBF, mean time between failure. Then there is a MTTR, mean time to repair. All these are the indicators which will tell you whether a maintenance process is working properly or not. So basically you are monitoring, measuring the performance of the process by which you are ensuring the effective operation and control of these processes. For example, quality control. You can check internal rejections. You can check number of complaints. You can check customer return products. And so all these are basically indicators to check whether the process is performing properly or not. In case of production, you can check the efficiencies, productivity, the rejection data, the scrap data. Got it? So this is what the standard is saying. You need to apply the criteria and the methods for evaluation of these processes. Determine the resources needed for these processes and ensure their availability. So ये डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है. दे आर नॉट सेइंग कि आपको डॉक्यूमेंट करना है कि हाँ मुझे तो इसके लिए आदमी चाहिए, नाउ पीपल आर देयर. और टेस्टिंग के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, मैंने डिटरमाइन किए, इट इज देयर. नो, आपको डिटरमाइन करना है कि जो प्रोसेसेस हमने डिटरमाइन की है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रॉपरली रन करने के लिए रिसोर्सेस प्रोवाइड होना चाहिए. इफ यू वांट टू कैरी आउट अ मेंटेनेंस, यू शुड हैव ऑल द टूल्स एंड टैकल. You should have a skilled manpower, है ना. So that resources determine होना चाहिए और वो आपको provide होने चाहिए. Assign the responsibility and authority for these processes. So maintenance में जो for example the maintenance process, people should be there. Responsibility and authority clear होना. Who is going to do the preventive maintenance, या फिर जो breakdown होते हैं उसको कौन अटेंड करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी ऑथोरिटीज क्या है, सेक्शन हेड की ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फिटर्स होते हैं, वेल्डर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, है ना, या शिफ्ट सुपरवाइजर्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी असाइन होनी चाहिए. नाउ एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द 6.1. अब वो 6.1 में हम जब जाएंगे, क्लॉज नंबर 6.1 में actions to address risks and opportunities, तो जो हमने 6.1 में एक कवर हो जाएगा कि जो भी हमने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की है
वो एड्रेस होनी चाहिए. सो हर एक प्रोसेसेस में देयर विल बी अ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, तो वो एड्रेस हो जाने चाहिए. Evaluate these processes and implement any changes needed to ensure that these processes achieve their intended results. So आप क्या करते हो, इन प्रोसेसेस को हो सकता है मंथली रिव्यू करते हो, आप ड्यूरिंग द ऑडिट आप रिव्यू करते हो, है ना, इनको इवेल्युएट करते हो कि ये प्रोसेस जो है ये प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है. एंड देन improve the processes and the quality management system. This is the requirement related to the processes and very important thing. यहां पे किसी को कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डाउट? Okay, and now 4.4.2 it asks you to the extent necessary the organization shall, अगेन शाल आ गया है ना, तो क्या करना है, मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेसेस. अब आप अगर बोलोगे कि सर कहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको वर्क रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, है ना, या फिर कहीं पे हमारे पास एसओपीज होनी चाहिए, या हमारा मेंटेनेंस का प्रोसीजर होना चाहिए, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सो 9001 is stating here to the extent possible, है ना, to the extent necessary. उन्होंने नहीं बोला है कि आपके पास होना ही चाहिए, they are saying to the extent necessary. ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेसेस. तो हमारी जितनी सारी प्रोसेसेस है उनको सपोर्ट करने के लिए, इफेक्टिवली कैरी आउट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखनी है. फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस की जो प्रोसेस है उसको अगर प्रॉपरली करना है तो आपके पास एसओपी होना चाहिए, हाउ टू कैरी आउट द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. आपके पास चेकशीट होना चाहिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए. अगर आप क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोडक्ट रिलीज की बात करते हैं, तो आपके पास एसओपीज होना चाहिए, टेस्ट मेथड्स होने चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स है वो होने चाहिए. आपके पास वेरियस फॉर्मेट्स होने चाहिए जहां पर आप टेस्ट डाटा एंटर करोगे. आपके पास वेरियस फॉर्मेट्स होने चाहिए जहां पर आप नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट को एड्रेस करके उसके ऊपर एक्शंस लोगे. तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड आपको रखनी पड़ेगी. ISO 9001 is not saying document name by name. They just said to the extent necessary. Now, to what extent it is necessary, organization has to decide. Got it? It changes from organization to organization. The format will change from organization to organization. And then it says retain documented information to have confidence that the processes are being carried out as planned. Now you will say कि सर कहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल हमको बनाना है. तो आप मुझे बताइए कि अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल ही नहीं बना तो आप कैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैरी आउट करोगे, कब कैरी आउट करोगे? आपके पास पीएम की चेकशीट ही नहीं है तो आप कैसे क्या चेकशीट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैरी आउट करोगे? तो सिमिलर वे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को जो रिटेन करना है, जैसे ब्रेकडाउन रजिस्टर्ड हम मेंटेन करके रखते हैं. क्यों करना है? क्योंकि अगर आप उसको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आप रजिस्टर करते हो, नोट डाउन करके रखते हो कहीं पे, तो मुझे पता है कि यस यू आर एनालाइजिंग द डेटा ऑफ ब्रेकडाउन, यू आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द ब्रेकडाउन डाटा फॉर द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. आप अगर टेस्टिंग का डाटा रिटेन करते हो तो यू नो दैट यस you have tested this, on which shift you are tested, on which date you are tested, what the results you have got, आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिले उसमें से वो आपको पता रहता है ना. That's why you need to retain the documented information. Again, क्या रिटेन करना है, कितने साल के लिए रिटेन करना है, इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन. एंड स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर है वो तो आपको फॉलो करनी है. Now this is one of the example of sequence and interaction. Sequence means steps और वो interact कैसी करती है ना. Now you see here customer and interested parties आ गई यहाँ पर. यहां से आती है हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट. ओके,
अब वो हमारी क्वालिटी प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोसेस प्लानिंग, ये सब हो गया। यहां से हमारा जो मेन है ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। अब सप्लायर इवेल्युएशन, परचेसिंग प्रोसेस, स्टोर्स प्रोसेस, रिसीविंग इंस्पेक्शन। स्टोर्स के बाद हो जाता है प्रोडक्ट रियलाइजेशन में। परचेस प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस प्लानिंग, ये दो इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। प्लानिंग वाले जो है वो परचेसिंग को बताते हैं मुझे ये चाहिए, है ना। इवन जो हमारे ऑर्डर हमारे पास रिसिप्ट होता है कस्टमर से, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू होता है, कोटेशन एंड ऑर्डर एक्सेप्टेंस होता है, ऐसे ऐसे होके फाइनल इंस्पेक्शन, यहाँ पर क्वालिटी के लोग आ गए। सब कुछ होने के बाद ये मटेरियल रेडी होता है डिस्पैच के लिए और हम यहाँ से उसको डिस्पैच कर देते हैं। सपोर्ट प्रोसेस में हमारा ट्रेनिंग आ गया, कैलिब्रेशन आ गया, इंटरनल ऑडिट्स आ गए, है ना, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स रिव्यू हो गए, हमारे डाटा एनालिसिस हो गए, रूट कॉज एनालिसिस हो गए। हाँ, इसमें आप इसकी भी ऐड कर सकते हो, सॉरी मेंटेनेंस प्रोसेस जो है वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, मेंटेनेंस प्रोसेस को। ठीक है, दीज आर ऑल द सपोर्ट प्रोसेसेस। ठीक है, दिस डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस प्लानिंग। प्रोडक्ट रियलाइजेशन का ये जो बॉक्स है टोटल, इसके साथ वो इंटरेक्ट करता है। अब उसके बाद में आप ये जो प्रोसेस है, ये आपके QMS डाटा आता है, सप्लायर इंडेक्स है, प्रोसेस इंडेक्स है, प्रोडक्ट इंडेक्स है हमारे पास, सर्विस इंडेक्स है, नॉन कन्फॉर्मेंसेस है, उसका डेटा आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास कस्टमर के पास ये सब चीजें आती है। वी विल गेट द फीडबैक बाय वे ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर फीडबैक आता है, कस्टमर कंप्लेंट्स आती है, प्रोडक्ट रिटर्न्स है, करेक्टिव एक्शन है। सो आपको पता होना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की दीज आर द प्रोसेसेस, ये इस तरह से इंटरेक्ट होती है। हियर एंड देयर एक एरो यहां से वहां चला गया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि वो इंटरेक्शन होता रहेगा। ये डायग्राम देख के आप इंटरेक्शन नहीं करोगे, आपको पता है कि एज अ मेंटेनेंस आपको परचेस के साथ बात करनी है, आपको प्लानिंग के साथ बात करनी है, आपको क्वालिटी के साथ बात करनी पड़ सकती है। इफ दैट मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी के डिपार्टमेंट का जो मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंट्स है उनका मेंटेनेंस करना है, तो आपको उनके साथ भी बात करना पड़ेगा। तो आप हर एक के लिए एरो नहीं दिखाते हो, आप बेसिकली यहां से आता है कि ये सपोर्ट प्रोसेसेस भी ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करते रहती है। इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन। ट्रेनिंग जो प्रोसेस है हमारी, इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन, है ना, ये पूरे जो है के साथ इंटरेक्ट करती है। परचेस के साथ भी इंटरेक्ट करेगी, स्टोर के साथ करेगी, है ना, इन लोग जो जो सेक्शन है उनके साथ इंटरेक्ट करेगी वो प्रोसेस। सो आपका जो ISO 9001 का जो मैनुअल है, आप उसमें देखोगे तो आपको ये सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ प्रोसेसेस करके एक डॉक्यूमेंट भी वहां पर दिखेगा। यू विल हैव दिस डॉक्यूमेंट देयर। गॉट इट। अब ये जो सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन है, हर एक कंपनी अपना अलग अलग, कोई कोई एकदम सिंपल भी बना देती है कि आपको बताना है कि यस मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसके अंदर रॉ मटेरियल यहाँ से आया, क्वालिटी कंट्रोल ने यहाँ पे चेक किया, मेंटेनेंस ने यहाँ पे, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, ऑडिट्स वगैरह सब एक जगह पे आ जाती है कि यस दीज आर हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद द मेन प्रोसेस। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट इज बेसिकली नॉट बीइंग यूज्ड ऑन डे टू डे, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग। ठीक है ना, तो जब आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे नया कोई आता है ना, सुपरवाइजर है या इवन इवन डिपार्टमेंटल हेड्स आल्सो, both many a times they people even don't know about this document, the sequence and interaction of processes, and that is not a point of non conformance also. कोई भी ऑडिटर आपको उस पॉइंट पे नॉन कन्फॉर्मेंस नहीं दे सकता है कि आपको तो पता ही नहीं सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन। नो वे, आपका जो पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बिल्टअप ही इसी के ऊपर हुआ है। ठीक है ना, तो अगर कोई मेंटेनेंस में काम करता है और कोई प्रोडक्शन में काम करता है और उसको ये नहीं पता कि सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन कहाँ है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो रिक्वायरमेंट नहीं है 9001 में कि आपको पता होना। ये जो आपका डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम जब बनाया जाता है तब ये चीजें की जाती है, ताकि आपको पता हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोसेसेस है, कहाँ पे आपको, जो ये पॉइंट है हमारा, है ना, आपको डिटरमाइन करना है प्रोसेसेस। जब आप प्रोसेसेस डिटरमाइन करोगे तभी तो आप रिसोर्सेज चेक करोगे और आप प्रोवाइड करोगे, तभी तो आप उस प्रोसेसेस को इवेल्युएट करोगे। यू विल इवेल्युएट दिस प्रोसेसेस। गॉट इट। That is why it is required at the time of planning phase of the quality management system.
जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का आप प्लानिंग करते हो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तब हमको ये करना है. Got it? So now coming to the clause number 5, we are already 9 o'clock is there, so we will stop for today. Somehow we are not able to finish the clause number 5. Tomorrow we will start with a fresh mind. Clause number 5, that is leadership. In that there is a 5.1 leadership and commitment, quality policy means policy and organization roles, responsibility and authority. इसके अंदर क्वालिटी पॉलिसी कैसे बनाना है और कम्युनिकेटिंग कैसे करना है वो रिक्वायरमेंट है. So tomorrow I will show you some of the examples of the quality policy and how you can prepare a quality policy also for your organization. फिर क्वालिटी पॉलिसी का कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटीज, जो कल क्वेश्चन था प्रशांत जी आपका एमआर रिलेटेड है ना. सो ये 5.3 में मैं आपको क्लैरिफाई कराऊंगा दैट एमआर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. कोई क्वेश्चन है आप लोगों का बेस्ड ऑन टुडेस टॉपिक? यू पीपल कैन आस्क. नहीं सर, ठीक है. ठीक है ना. आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग भेजी दिया था. टुडे ऑल्सो आई विल सेंड. वो 1-2 दिन के लिए पब्लिक रहती है, उसके बाद वो आपके ईमेल आईडी से कनेक्ट हो जाएगी. प्रशांत जी आपका ईमेल आईडी मुझे मिला नहीं है, सो प्लीज शेयर दैट ईमेल आईडी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and see you people tomorrow same time, and we will start with clause number 5 and the planning clause number 6. So bye bye for today. See you people tomorrow. Okay, thank you. Good night. Good night. Bye sir, good night. Bye Abbas. Bye, good night, sir. Good night Nisa.